कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज का जो भागवत चर्चा है, तो हम लोग एक छोटा सा भजन से शुरू करते हैं। फिर आज पितामह भीष्म का जो कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको आगे देखेंगे। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई श्याम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। ले लो रे कोई श्याम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आवेगा। माया के दीवानों सुन लो, एक
रे मोती संत बिखेरे गली गली Yeah.
Acharya Stotarasta Shishimad Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBD Fund Acharya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrind Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Gangamai Jamnamai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sako Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrind Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan Ki Jai Shri Shri Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman Ki Jai Umapati Mahadev Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Granthra Srimad Bhagavad Mahapuran Ki Jai Samaved Bhakta Vrind Ki Jai Nitai Go Premanande Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shita Padakamalam Shri Guru Vaishnavangsha Shri Rupam Sajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jasya Prasada Bhagavat Prasado Jasya Prasada Nagati Kutopi Dhyayanstu Anstasya Yasya Sri Sandhyam Vande Guru Shri Charanaravindam Vande Guru Shri Charanaravindam Vande Guru Shri Charanaravindam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Tama Krishna Goswami Niti Namine हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज यहाँ पर अंतिम दिन है चर्चा भगवत का। ये जीवन का अंत नहीं होता है, यहाँ पर सत्संग का अंत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 3 दिन का जो संगठन था उसके निमित्त हम लोग पितामह भीष्म का जो कथा है वो चर्चा कर रहे हैं बानों की शैया पर लेटे हुए। और कल जहाँ कथा स्थगित किए थे वहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे थे कि यही कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप वास करते हैं। तो आज श्लोक संख्या 22 से देखते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे त्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान सभी को समदृष्टि से देखते हैं, परंतु अपने अनुकंपा पश्य भूप अनुकंपितम, भगवान अनुकंपा, भगवान अपने कोजलेस मेसी से यहाँ मेरे पास आ गए। क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया, सब तो चले गए, तो फिर पुनः
तो पितामह भीष्म अकेले कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं। हम और आप सब ऐसे अपने अपने जीवन में अकेले अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अकेले अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उलझने हैं, जो दुख है, उसको निवारण करने का खुद हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान पुनः रणभूमि में आगे अपना कृपा मेरे पर करने के लिए। अभी पितामह भीष्म प्राण त्यागे नहीं थे, केवल बाण के शैया पर पड़े हुए थे और उनको प्राण त्यागना है। हम सभी लोगों को ऐसे एक समय प्राण त्यागना है। इसलिए बहुत सुंदर भजन लिखा है संतों ने, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। ये चैतन्य महाप्रभु आके यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध शाह। चैतन्य महाप्रभु आए और ये भगवत नाम जो है, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम की। भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भक्त जन होंगे जो गौड़िया वैष्णव हैं, वे ऐसा शोर मचाएंगे। अन्यथा हमारे समाज में हम लोग क्या करते हैं, सब लोग बोले पूजा अपना अपना करो, दूसरे के दिखावा करने की क्या जरूरत है। कभी कभी हमारे भक्तों को लोग कहते हैं ये गले में माला टांग के घूमने का क्या जरूरत है, क्या दिखावा करना है, अपने मन में हृदय में भगवान को जाप करो, हृदय में भगवान को याद करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो संत हैं, जो डिवोटीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्यों शोर मचा रहे हैं, ले लो रे कोई राम के प्यारे, कोई तो ले ले भगवान का नाम। कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे घर में होता है, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, कभी कभी परिवार होता है, उनको पुनः याद दिलाना पड़ता है कि तुमने अमुक समय ऐसा कहा था। तो कभी कभी बाप कहता है बच्चे को, भूल मत जाओ मैं तुम्हारा बाप हूँ। बच्चा कभी पढ़ा लिखा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा कमाता है, तो फिर बाप को उद्देश्य करने लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी हमको पुनः याद दिलाते हैं कि आई एम द सीड गिविंग फादर। भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब कुछ हूँ। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान की अनुकंपा है कि भगवान मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित है, जबकि मैं अपने जीवन को अंत कर रहा हूँ। और क्योंकि अपने जीवन अंत करते हुए, और पितामह भीष्म कहते हैं फॉर आई एम हिज अनफ्लिंचिंग सेविका, बोला कि मैं उसका अनन्य भक्त हूँ। अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत बार सुने हैं अनफ्लिंचिंग डिवोशन करना चाहिए या अनफ्लिंचिंग डिवोटी है। इसका मतलब क्या होता है, जो नहीं टूटे, ठीक है, और कोई जो विदाउट फेल करता है। अनफ्लिंचिंग का भाषांतर है, उसका मीनिंग है नॉट शोइंग फियर और हेसिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। अनफ्लिंचिंग भक्ति का मतलब होता है कोई भी भय नहीं। अभी हम लोग के कोई बहुत बड़ा बीमारी आ जाए तो हम लोग के थोड़ा से हृदय हिल जाएगा, थोड़ा से हृदय हिल जाएगा। बोले भगवान श्री राम के चरण छोड़ के थोड़ा से डोरा बंधवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो श्रद्धा है वो राम से हटकर काले धागा पर चला गया, वो राम से हटके काले धागा पर चला गया। तो अनफ्लिंजिंग यहाँ बाण की शैया पर लेटे हुए हैं। दुर्योधन के पक्ष में भी चले गए थे, भगवान के विरोध में भी युद्ध किया, लेकिन डरे नहीं। भगवान उनको रक्षा देंगे उसका उनको बिल्कुल भय नहीं था। हम लोग कभी कभी ऐसे होता है अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, कब हम लोग के सबके जीवन में ऐसा होता है, जब कोई काम गड़बड़ कर दो तो सबसे पहला अनुभव क्या होता है, मानो झूठ बोल दिया, चोरी कर दिया, गप मार दिया, तो सबसे पहला फीलिंग क्या आएगा आपका, है पाप हो गया और
सबसे पहला वस्तु है डर आ जाएगा आपको, डर आ जाएगा। कभी कोई कैसे खड़े खड़े झूठ बोल दो तो उसे दिल में से कंपन हो जाएगी नहीं? तो फिर अब तो बोल दिया है, दिल इसे कांप गए थोड़ा से, लेकिन अब उसको डिफेंड करते रहो। तो पितामह भीष्म के हृदय में तनिक भी डर नहीं था, तनिक भी डर नहीं था कि भगवान उनको when he is ending his life, I am ending my life, जीवन अंत करते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वे सभी को समदृष्टि से देखते हैं, परंतु उनके जो अनफ्लिंजिंग डिवोटी है, उनके जो अनफ्लिंजिंग को हिंदी में कहेंगे निर्भय, मतलब जो किसी भी अवस्था में डरता नहीं, भगवान के रक्षा से, भगवान का रक्षा नहीं होगा इसका कोई डर नहीं, कभी संशय नहीं है कि भगवान का रक्षा नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु भगवान अपने ऐसे निर्भय भक्तों के प्रति जो उनको संपूर्ण शरणागत होते हैं, जो यह जानते हैं कि उनके इष्ट श्री कृष्ण या राम के अलावा दूसरा कोई न रक्षक है, न मित्र है, न स्वामी है, जो ये बात को समझता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, त्वमेव सर्वं, तुम मेरे सब कुछ हो भगवान, तुम मेरे सब कुछ हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, विद्या हो, द्रविणम हो, और अगर इसके अलावा भी कोई कुछ सोच रहा है, कोई छूट गया है, तो भी प्रार्थना में बोलते हैं सर्वम, कुछ छूट नहीं सकता है। भगवान ऐसे होते हैं। तो बताया गया है कि ये जीवात्मा ऐसे ही बना है भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान हम लोग के ऐसे बनाया ही है। जैसे कभी कभी कुछ खेलने की वस्तु होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता मैं क्या उदाहरण आपको बताऊं, लेकिन मानो कोई एक वस्तु होता है, मानो जैसे हम लोग ये ले लेते हैं, पॉपकॉर्न ले लेते हैं, पॉपकॉर्न ले लेते हैं, पॉपकॉर्न को ऐसे रखोगे क्या वो फूलेगा? जब पॉपकॉर्न ताप पे जाएगा तब एडिबल हो जाएगा। पॉपकॉर्न के दाना जो मकई का दाना जो है उसको ऐसे नहीं खाया जाता है, जब उसको ताप पर गर्मी पर डाला जाता है तो वो फूट फूट कर खाने योग्य हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवान के इच्छा से हमारा बनावटी जो है, जीवात्मा का बनावटी जो है वो ऐसा ही बना है कि जब तक जीवात्मा कृष्ण भावनामृत में, भक्ति में ना उतरे तब तक जीवात्मा सुख अनुभव करेगा। प्रभुपाद जी लिखे हैं, a living entity is so made by the will of the Almighty that he is most happy when placing himself in the condition of absolute dependence on Krishna. जीवात्मा तभी खुशी होगा जब वो भक्ति में स्थित होगा। आप हमारे भक्तों से पूछिए, हमारे सभी भक्त यही बोलेंगे कि सबसे प्रसन्नता, सबसे सुख की अवस्था हमारा वही हुआ है जब हम संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान में शरण लगे। स्पेशली कोई भी भक्त से पूछो, द मोस्ट ब्लिसफुल टाइम एवरीवन हैज एक्सपीरियंस इज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। द मोस्ट ब्लिसफुल टाइम एवरीवन हैज एक्सपीरियंस इज गौर पूर्णिमा। मोस्ट ब्लिसफुल टाइम यू एक्सपीरियंस इज राधाष्टमी, रामनवमी। क्योंकि भले हम लोग संसार के कार्य करते हैं, लेकिन वो ऐसा समय होता है जब जन्माष्टमी के मध्य रात्रि को जब कीर्तन हो रहा होता है, ड्रामा होता है, कथा होता है, सब लोग उन क्षण घंटों के लिए पूरा दुनिया, घर द्वार सब लोग भूल जाते हैं। मतलब यू आर कंप्लीटली इन भगवान।
जब आप संपूर्णता भगवान में रहेंगे तब आप अद्भुत आनंद। हमारे संस्था में हमारा अनुभव बहुत बार हुआ है। कितने लोग जब हमारे मंदिर में पहली बार जन्माष्टमी में आते हैं, या कई लोग बारंबार भी आते हैं, जन्माष्टमी के दिन हमेशा हमारे मंदिर में एकदम खचाखच हो जाता है, और सभी लोग एवरी टाइम हर साल कहते हैं दिस इज द बेस्ट। हर साल लोग कहते हैं ऐसा जन्माष्टमी हमने यहाँ हरे कृष्णा आंदोलन के अलावा कहीं और नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि भक्तों का प्रयास होता है कि पूरा जो 4-5-6 घंटे का जो समय सत्संग होता है उसको परिपूर्णता एकदम कृष्ण भावना मृत से भरा हुआ हो, भक्ति रस से भरा हुआ हो। इसलिए वो भजन गाते हैं ना, मीठी रस से भरी राधा रानी लागे। मंजू की बहुत अच्छा गाती है इसका। तो राधा रानी, कृष्ण राधा रानी क्यों मीठी रस से भरी है? क्योंकि राधा रानी का एक नाम है कृष्णमयी, मतलब वो सिवाय कृष्ण का दूसरा कुछ सोचती ही नहीं। ब्रज में जब अनेक अनेक दानव, और छोटे छोटे दानव नहीं, बड़े बड़े दानव आते हैं। देखिए ब्रज की लीला बहुत सुंदर है। ब्रज की लीला में आप देखिए वो कौन था वो काट डीमन, शक्तासुर कैसा डीमन था? वो भूत डीमन था। ही एंटर द काट। वो वैसा राक्षस नहीं था कि वो कोई आकार बना के आया। वो पहला जो कृष्ण बुक में स्टोरी है शक्तासुर का, वो डीमन था, वो जो काट था, वो काट से भगवान को मारने का प्रयास किया। तो ऐसी ऐसी अवस्था ब्रज के भक्त जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर किसी को भूत से भी आपत्ति हो तो शरण क्या है? कृष्णा। कृष्णा। अरिष्टसुर है, और अलग अलग प्रकार के और दानव लोग आते हैं। अरिष्टसुर वाज अ ब्लैक बुल। अगर कोई काला जादू कर दे उसका निवारण क्या है? कृष्ण भक्ति। कभी कभी क्या होता है, एक लीला भगवान के, किसका, कौन भगवान के माता रूप धर के आया? पूतना। पूतना का भाव क्या था? मिलनसार, माता का। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी क्या हम लोग क्या कहते हैं, अपने ही लोग अपने ही पीठ पर खंजर मार देते हैं। कभी कभी लोग मिल के भी हार्म करते हैं। उसका निवारण क्या है? कृष्णा। सब प्रकार के जो राक्षस ब्रज में गए वो सब अलग अलग अवस्था को संबोधन करते, हमारे जीवन में हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी माताएं भी कहती है हमारा बच्चा हमारे साथ में ऐसे कर देगा। वो आजकल के ज़माने में वो यूट्यूब में फेसबुक में बहुत आता है। वो माता को ले जाते हैं, बोले माता आप यहाँ पर पानी पूरी खाओ, बस स्टॉप पर बैठ के आप यहीं बैठा रहना, मैं भी आता हूँ। माता बेचारी पानी पूरी खाते खाते अगरते अगरते पागल हो जाती है, बच्चा आता ही नहीं है। ये सब हम लोग इनके निवारण कहाँ है? श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण में। कभी कभी हम लोग संसार में सोचते हैं ऐसे ऐसे दुख क्यों आता है? ये सब दुख के कारण है गुरु न शस्यात्, जननी न शस्यात्, पिता न शस्यात्, स्वजनो न शस्यात्। जब हम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाते नहीं है। गुरु के कर्तव्य है शिष्य को भक्ति में प्रेरित करना, शिष्य को पाप से छुड़ाना, ये गुरु के कर्तव्य है। माता पिता, जननी न शस्यात्, पिता न शस्यात्। माता पिता के धर्म है बच्चे को भक्ति में संलग्न करना। हम लोग छोटे से बच्चों को भक्ति सिखाते नहीं है तो बड़े होकर बच्चे क्या करेंगे? आपको ले जाके वृद्धाश्रम में ही छोड़ेंगे। अगर भक्ति का सभ्यता सिखाओगे तो बच्चे घर पर सेवा करेंगे। जब धर्म नहीं सिखाओगे तो बच्चे कहाँ जानेंगे कि माता पिता पहले गुरु हैं? ये सिखाना पड़ेगा। जब बच्चे बिगड़ जाए तब बताओगे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी माई हूं, माई बाप पहला गुरु है। तब तो अब तो बच्चे अपने कर्म में शुरू हो गए, अब गुरु को नहीं मानेंगे। तो ये शिक्षाएं देनी होंगी हमको। तो जब हम लोग बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करेंगे
तब हम लोग यहाँ पे पितामह भीष्म कहते हैं कि जब तक हम भक्ति में न स्थित होंगे, हमारा बनावटी ही ऐसा है कि जब हम भक्ति में स्थित होंगे तभी हम सुखद होंगे, अन्यथा सुखद नहीं हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान पर संपूर्ण शरणागति से भगवान मिलते हैं, और उसका विपरीत होने से, जैसे हम भगवान पर शरणागत नहीं होते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? पतंती अधा। भगवान पर शरणागत होने से हम आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ते हैं, और शरणागत ना होने से हम लोग पतंती अधा, पाताल लोक की ओर जाते हैं, या भक्ति में हम लोग गिरते चला जाते हैं। शरणागति का चिन्ह है भगवान पे शरणागति, मतलब सब समय भगवान के सेवा में अग्रसर रहना, राम कारज के आतुर। वन शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक। हरि कथा, हरि नाम, भगवत नाम जप, भगवत सेवा, सत्संग, ये सब में हमको हमेशा एंथुसियास्टिक रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए, आतुर रहना चाहिए हम लोगों को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आतुरता सफलता का मार्ग है, एंथुसियास्टिक जो है वो सफलता के मार्ग है। और आतुरता के ऑपोजिट क्या है? आलसी, आलसपना। आतुर और आलस, आतुरता से भगवान मिलते हैं, आलसता से पतंती मिलता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं यहां तक कि जीव का भ्रम बढ़ जाता है। भीष्मदेव कहते हैं कि जीव का भ्रम कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो भगवान से स्वतंत्र होकर और सोचता है, अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर लेता है। वो भगवान से स्वतंत्र होके और किस पर निर्भर हो जाता है? संसार पर। लोड इट ओवर मटेरियल नेचर। और वो भ्रम में सोचता है कि मैं शरणागत हूं। वो भौतिक वस्तुओं पर निर्भर होते चला जाता है और मन विचार करता है कि मैं भगवान पर निर्भर हूं। सभी कुछ जीवन में संसारिक करता है और सोचता है मैं भक्त हूं। दुनिया के हालत ऐसे है कि नहीं? कम से कम अगर केवल एक ही, दूसरा और क्वालिटी हम लोग नहीं ले, केवल एक क्वालिटी ले, दया का। हम लोग देखते हैं लोग लंबी लंबी तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, क्या क्या नहीं करते, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त संत मानते हैं। अगर उनको खाली पूछो आप वेजिटेरियन हैं तो उतना भी नहीं, लेकिन ये भ्रम में पड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं इतना माया का भ्रम में पड़ जाते हैं कि दया तो है ही नहीं। रामायण में कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दूसरा सब गुण छोड़ दो, केवल जीव हत्या और अभिमान का ही परिचय लो। एक से एक संसार में अभिमानी लोग घूम रहे हैं और अपने आप को धार्मिक सज्जन मान रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई निगुना पी रहा है और अपने आप को सोचता है कि मैं धार्मिक, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं। कभी कभी लोग 1-2 हफ्ते के लिए कोई व्रत कर लेते हैं, कोई नियम कर लेते हैं, ये सब करे सोचे मैं भक्त हूं। पितामह भीष्म कहते हैं ये संसार जब मन में चढ़ जाए तो संसार का माया जो है ये अभक्त को महसूस कराता है कि मैं भक्त हूं। लेकिन वास्तविकता में भक्त कहते हैं कौन भक्त है या भक्त नहीं है, इसका पहचान पितामह भीष्म के कथा से कैसे पता लगता है कि वास्तविकता में कैसे जान पाओगे कि आप भक्त हो कि नहीं भक्त हो? अंत समय जब भगवान सामने होंगे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। अभी कौन कितना पानी में कुछ पता नहीं है,
जब गला दबेगा ना, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, वो तोता होता है, पैरट होता है, तो पैरट को कभी कभी लोग अपने घर पे सिखा देते हैं राम, तो तोता बोलता है राम। लेकिन जैसे बिल्ली उसका गला दबाती है तब वो राम नहीं बोलती है, तो ऐसा बोलती है। तो मृत्यु जो है वो जब हमारे सामने खड़ा होगा तब पता लगेगा हम भक्त हैं कि नहीं भक्त हैं। लेकिन फिर भी हाँ, पितामह भीष्म कहते हैं कि जीव का आकर्षण भगवान के प्रति तब होता है जब जीव भगवान के प्रति बहुत ही निजी संबंध स्थापित कर लेता है। ये बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को भगवान के साथ में एक संबंध होना चाहिए, चाहे दास्य का, चाहे वात्सल्य का, चाहे सख्या का, या फिर माधुर्य का। ये चार प्रमुख भगवान के आदान प्रदान का संबंध है, आदान प्रदान का संबंध है। तो ऐसा भाव हर एक व्यक्ति को जागृत करना चाहिए। आपको होना चाहिए भगवान के बाल रूप का आपको आकर्षित करता है, भगवान का राजा रूप आपको आकर्षित करता है, क्या भगवान का लक्ष्मी नारायण रूप आपको आकर्षित है। एक संबंध में स्थित होना होता है, क्योंकि जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक संसार का संबंध छूटेगा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम चल रहे होते हैं, जब हम अपने कदम ले रहे होते हैं, ये स्वाभाविक है, आपका जो पिछला पैर है वो तब उठता है जब अगला पैर थम जाता है। जब अगला पैर थम जाता है, आप अनजाने में भी, आप लोग यहाँ चल के आए होंगे, सीढ़ी चढ़ के आए होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन स्वाभाविकी नेचुरली जब आप एक कदम लेते हैं, आपका जब ऊपर स्टेप पे जब पैर स्थित हो जाता है तब आप अपना दूसरा पैर उठा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पैरों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, झुंझुनी पकड़ लेता है, फूल जाता है। जब झुंझुनी पकड़ लेता है तो हम लोग के पैर हम लोग रख पाते हैं। बस हम लोग के मन में ये संसार भोग वासना के झुंझुनी पकड़ा है। आप लोग सब अनुभव किया कि नहीं? झुंझुनी पकड़े, इसे डॉक्टर लोग से पूछो, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगे ना, इसे झुंझुन झुंझुन कर अच्छा लगे। लेकिन आगे चले मांगो तो क्षमता रहे चले के नहीं सको ना, खड़ा भी हो मांगो तो हम लोग डगमग हो जाते हैं। ऐसे संसार के आसक्ति से हम लोग कैसे लगे, थोड़ा थोड़ा आनंद लगे, लेकिन उसमें क्षमता नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सकें। मटेरियल प्रोग्रेस लगता है, आज हमारे पास $1000 है, बयान 10,000 हो जाएगा, परसों 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाएगा। ये भले लगता है, लेकिन इसमें वास्तविकता में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं। आगे बढ़ना मतलब भगवान के संबंध जागृत करने में आगे बढ़ना चाहिए। ये हम लोग के हरि कथा जो है, हमारे गुरु भाई हैं एक भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज, वो कहते हैं ये सत्संग जो है, हरि कथा जो है, दिस इज अ डेट विथ कृष्णा। जैसे एक युवा एक युवती होती है, जब पहला बार मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। हम लोग सब फ्रेंड लोग के बता देता है आज हम डेट पे जाता है। लेकिन हम लोग सत्संग में जाते कोई बताना नहीं कहाँ भक्त होए लगा है, शर्म लगे। कृष्ण के संगे डेट में क्या शर्म करना चाहिए? हरि कथा सत्संग जो है, दिस इज अ डेट विद कृष्णा। तो एक युवा जाता है, एक बार मीट करके आता है, तो फिर क्या होता है? नेक्स्ट डेट। शीतलांगी माता जी, इंद्र प्रभु बोल रहे डोंट नो। सॉरी प्रभु, आपका बड़ा स्लेक्ट डेट है। हरे कृष्ण।
Indra Prabhu is a nice devotee. He's dating with Krishna's holy name. That's why I forgot another date. तो एक बार मिलते हैं, फिर दूसरा बार मिलने की चाह होती है, हैं? जब दूसरा बार मिलते हो, तीसरा बार मिलते हो, फिर क्या होता है? हैं? ये कोर्ट कचहरी का बात नहीं है, डेट पे डेट, डेट पे डेट। फिर धीरे धीरे डेट में क्या होता है? Then you take a flower. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जब डेट गहरा होने लगता है, तब नहीं, अनलेस कोई बहुत कंगाल लड़का होए तो हरदम मांगे डेट करे क्योंकि फ्री लंच मिल जाए। भगवान की, इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता है, भगवान के लिए जाया जाता है तो कुछ भगवान के लिए समर्पित किया जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लोग आरती में पैसा क्यों छोड़ते हैं? लोग आरती में पैसा क्यों छोड़ते हैं? आजकल तो यही चलता है, कोई को गिफ्ट भी देना हो, वास्तव में लोगों को पता नहीं है दूसरे का पसंद, तो आदमी क्या करे? बोले पैसा दे देता है, आप ले लेना जो चीज़ आपकी अच्छा लगी। फिर उसको बहाना मार देते हैं, हम सोचा आपके लगे सब चीज़ जो चीज़ नहीं हुई वो ले लेना। अरे उसके पीछे बात है कि हमें तुम्हारा चॉइस नहीं पता है। चॉइस क्यों नहीं पता है? क्यों हम लोग व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं, तब तो चॉइस नहीं पता रहेगा ना। जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, उसको देखो, उसको पता है पति को कैसा रंग पसंद है, कैसा। पत्नी कहती तुम्हें नहीं पता है हमने। तो जब हम लोग भगवान से प्रेम करेंगे, तो ये तो आरती में पैसा छोड़ देना ये शॉर्टकट है, मतलब ये एक्चुअली डोंट नो व्हाट कृष्णा इज। कृष्णा क्या चाहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान को भोग धराया जाता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं भक्त का प्रेम। भगवान कैसे, कौन वाया मीडियम से आए? वो मेन रास्ते पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है, EFL के लाइन से यहाँ पे पावर कैसे लाया जाए? वो कोपा का वाया होता है, तब यहाँ आता है तो उसमें से बिजली रोशनी इसमें आ जाता है। तो हमारा और आपका जो प्रेम है वो भगवान तक कैसे पहुँचेगा? बाय ऑफरिंग। कृष्णा वो ऑफरिंग के माध्यम से हमारा प्रेम लेते हैं। कोई ऐसे लगा मैं भगवान के सामने जाके खड़ा हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूं भगवान के लिए, मैं केवल भगवान आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। भगवान बोले प्रेम करोगे तो सेवा करोगे, सेवा करोगे। इसीलिए कोई भगवान के लिए माला बना के लाता है, कोई भोग बना के लाता है, कोई अलग अलग सेवा करता है, कोई मंदिर साफ कर देता है। ये आदान प्रदान होता है। तो बोला कि ऐसे आदान प्रदान से पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इसमें रस है। जब आदान प्रदान होगा तब भक्ति का रस अनुभूत होगा। यू विल ओनली एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय सर्विस। भगवान के नाम जप करने से क्या होता है? भगवान के नाम हमारा सेवा में रुकावट क्या है? हमारा सेवा का रुकावट है हमारा मलिन मन। तो इसीलिए पहले हम लोग भगवान का नाम लेते हैं मन को तारने के लिए, मन को तारने के लिए मंत्र। ब्रह्मा जी क्या बोले नारद जी से? इति सदस्य का नाम कली कल्मश नाशनम। वो मलिनता को नाश करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब अनुभूति, ये जो भक्ति का हमने आपको व्याख्या सुनाई है, ये सेवा, ये भक्ति रस, ये नाम रुचि, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ये सब संभव तभी होगा, ये भक्ति का आस्वादन उस व्यक्ति को होगा जिसको बताया गया है द बेस्ट वे टू स्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्वीटनेस इज टू अप्रोच कृष्णा थ्रू हिज रिकॉग्नाइज्ड डिवोटीज। जब हम उनके भक्तों के माध्यम से भगवान को अप्रोच करेंगे तभी भक्ति में रस लगेगा।
तबे से जिसके जीवन में सदगुरु है वो भक्ति के रस को आस्वादन करता है। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है वो भक्ति का रस नहीं आस्वादन कर पाएगा। वो तो केवल कुएं का पानी जैसा होगा। केवल कभी रामनवमी में हाय हो जाओ, रामनवमी समाप्त हो जाए, फिर हेराए जाओ, फिर जन्माष्टमी आए फिर दिखाए जाओ, नवरात्रि आए फिर दिखाए जाओ, फिर नवरात्रि खलास हो जाए फिर हेराए जाओ। लेकिन जिसके जीवन में सदगुरु है, अब सदगुरु के मतलब भी केवल यही नहीं है कि हम लोग केवल गुरुमुख हो गए, मतलब यू मस्ट, सदगुरु है मतलब यू आर लिविंग हिज इंस्ट्रक्शन। गुरु के वाणी को हम लोग जब जीते हैं, प्रभुपाद जी अपने गुरु के वाणी को जिया। वो गए पाश्चात्य देश और हरिनाम संकीर्तन शुरू किया तो कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन खड़ा कर दिया। दैट मीन्स द गुरु, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं, बुक्स में लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोला मैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया। आई ऑलवेज हैड माई स्पिरिचुअल मास्टर विद मी, आई ऑलवेज हैड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जितने भक्त लोग भी आए तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप सब मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए हो। तो इसीलिए बताया गया है कि बिना रिकॉग्नाइज्ड डिवोटी के, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड नॉट ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशन डायरेक्टली। हम लोग भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप करने के लिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप करने के लिए हमको गोपी होना होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप करने के लिए हमको यशोदा होना पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप करने के लिए हमें पांडव होना होगा। कौन तैयार है यहाँ पर 13 साल वनवास काटे के? कोई तैयार है? उसके हम लोग लक्षा घर में रख के आगी लगा दे और आप भगवान के आश्रम में निकल आओ। आगे लगे से पहले आप भाग जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए हमको हनुमान होना होगा, हनुमान होना होगा। संजीवनी पर्वत उठाना पड़ेगा, लंका नांगना पड़ेगा। तो ऐसे ऑब्वियस है कि हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कर पाएंगे, हम लोग का होगा ही नहीं। अगर हमारे में से कोई गोपी बन सकता है, गोपियां क्या होती है? गोपियां जो कुछ करती है बस केवल यही रास्ता देख रही है, कब कृष्ण है, कब कृष्ण है, कब कृष्ण है। गोपियों का अवस्था क्या था? कृष्ण जब मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका चले गए और द्वारका में जब सूर्य ग्रहण के समय जब तक कुरुक्षेत्र वापस नहीं आए, मालूम है तब लग गोपियां लोग एक पलक नहीं मारा, एक पलक नहीं मारा। हम लोग की अवस्था तो ऐसे है कि हम लोग की आंखें खुले नहीं, वास्तव में हम लोग भी नहीं पलक मारते, बंद ही रहे, भागवत कथा में भी बंद हो जाए। गोपियां एक पलक नहीं मारी। कोई ऐसा हो एक पलक? कौन व्यक्ति यहां पर है जो गुडकेश है, मतलब अपने नींद को कंट्रोल कर लिया है? डायरेक्ट रिलेशनशिप के वास्ते ये चाहिए। हम लोग नींद को नहीं कोंका किए, नींद हमको कोंका कर दिया है। तो सुंदर बात प्रभुपाद जी बोला कि हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कर पाएंगे भगवान से। तो होगा कैसे? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कोरी। बिना गुरु के, बिना वैष्णव ठाकुर के करुणा से, यहाँ पर पितामह भीष्म यही कह रहे कि भगवान करुणा किए हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग कलयुग के जीवों के लिए भगवान का करुणा क्या है? गुरु कृपा। हमारे जीवन में वैष्णव कृपा, संतों का कृपा आ जाए तो जान जाना भगवान का कृपा हो गया, जान जाना भगवान का कृपा हो गया। तो one should not try to establish the relation directly. There must be a via medium which is transparent and competent to lead us
टू द राइट पाथ। जो वाया मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो तभी भी प्रेम भक्ति नहीं होगा। उदाहरण है जैसे ये खिड़की में ये सब क्लियर ग्लासेस लगा है, तो सूर्य की किरण जो है वो उसके आर पार आता है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग ये ग्लास टिंट कर दे तो अंदर का किरण कैसा हो जाएगा? सफेद या गोल्डन रहेगा कि काला काला हो जाएगा? ऐसे जीवन में भी साधु संत आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होना चाहिए, यथा रूप होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में हमने गुरुजनों का, साधु संतों को स्वीकारा है, लेकिन अगर साधु संत और गुरुजन अपने मन गढ़ंत उसमें जोड़ रहे हैं, तो आप जान जाना आपको भक्ति यथा रूप नहीं मिल रहा है। और संसार में आज यही दुख है कि लोग इधर उधर के पारंपरिक गुरुओं या संतों या भक्तों को नहीं ढूंढ रहे हैं। लोग सब इधर उधर, कोई ढोंगी भक्त हो गया है, कोई केवल गेरा वस्त्र पहना है, टीका लगाया हुआ है, गले में कंठी या गले में रुद्राक्ष डाला हुआ है, बड़े बड़े जटा धारण किया, जो बाहर से इसे लगता है कि हम लोग उसके पीछे पीछे, कोई पीला वस्त्र पहन ले हम लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। पहले हमको पता लगाना चाहिए कि तू क्या करता है, तू क्या करता है। पहले किसी के संगति में जाओ तो ऑब्जर्व करो, क्या बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है? सबसे सुंदर बात है कि जब आप संगति में जाते हो, व्यक्ति के संगति से कैसे आप तुरंत एक व्यक्ति के बारे में जान जाते हो, जब वो आपसे बातचीत करता है, जब वो कृष्ण भगवान भक्ति प्रेम इस सब बात करता, सद्गुणों की बात करता है, तब वो पारंपरिक हो सकता है। अन्यथा लोग तो सब क्या काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी का बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, एक मंडली में सत्संग होता है और सत्संग होते होते मंडली टूट के दो हो जाता है। अरे क्या सत्संग हुआ? सत्संग मतलब जुड़ना, सत्संग से जुड़ना होता है, तोड़ना थोड़ा होता है। जब तोड़ना होता है तो मतलब कुछ मलिनता है। मलिनता क्या है? सदमार्ग नहीं पालन किया जा रहा है। ग्रंथों में तो स्पर्श दिया गया है। रामायण में बताया कलयुग केवल नाम धारा। रामायण का पाठ हो जाए तो राम का भजन होना चाहिए, राम का भजन होना चाहिए। भागवत कथा हो जाए तो कृष्ण कीर्तन होना चाहिए। फिर देखो जीवन में लोग अपना कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं, जीवन में लोग अपना भगवत नाम जप कर रहे हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में भगवत नाम जप करना चाहिए। जो पूजा करता, जो भक्त होगा वो सब समय, आप भारत में जाइए, आप भारत में जाइए, वृंदावन में जाइए, सभी लोग भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं, कोई ना कोई, सभी के हाथ में। आप विशेष करके वृंदावन में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, मायापुर नवद्वीप धाम में चले जाओ, रामेश्वर में चले जाओ, आप वहाँ देखेंगे सब लोग क्या है, हाथ में झोली लेकर घूम रहे हैं। कोई माला कर रहा है, माला कर रहा है, माला कर रहा है। माला जप करना ये अंतरंग साधना है, अपना साधना है, तो ये तो करना है। रोज रोज हम लोग सत्संग में एकत्र नहीं होंगे, रोज रोज प्रभु जी हमारे साथ में नहीं होंगे कीर्तन करने के लिए, जो हमें कीर्तन में रमा दे। हम लोग 1-2 घंटे के लिए तो कीर्तन में रम जाएंगे। अभी हम आए, बहुत सुंदर बड़े भावुक कीर्तन हो रहा था, जिसमें आपो आप मन लग्न हो जाता है। लेकिन रोज रोज कहाँ होता है, 24 घंटे कहाँ होता है। हमको अपना भी तो जीवन निर्वाह करना होता है। तो अपने जीवन में कीर्तन कैसे जागृत रखना है? भगवत नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे जब अपने जीवन में हम भगवत नाम को उद्धारण करेंगे, तब हम भी अनफ्लिंजिंग से बिटा हो जाएंगे, भगवान के निर्भय भक्त हो जाएंगे। जो पहले से निर्भय है उसको केवल भक्त हो जाना है, बस निर्भय भक्त, उतना ही करना है। तो आगे पितामह भीष्म कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु अपीयर्स इन द माइंड ऑफ द डिवोटी बाय अटेंटिव डिवोशन। सतर्क भक्ति करना होगा, सतर्क भक्ति करना होगा।
जब आप भगवान की आरती कर रहे हो मन भगवान में होना चाहिए। भगवान, इसीलिए जैसे नारद पंचरात्रिक बताता है, नारद पंचरात्र हम लोग जानते हैं, सब लोग आरती करते हैं, बस ऐसे करके घुमाओ, ऐसे घुमाया तो सबके संगे घुमाओ, ऐसे सब लोग करते हैं। नारद पंचरात्र कहता है कि भगवान के कमल चरणों को दर्शन करते हुए 4 बार उस पर, व्हेन यू आर ऑफरिंग, 4 बार भगवान के चरणों पर ध्यान होना चाहिए, फिर 2 बार भगवान के उदर पर ध्यान होना चाहिए, 3 बार भगवान के मुख पर। जब भगवान के मुख पर ध्यान हो तो हम लोग क्या देखें? भगवान के कमल नयन देखें, भगवान के कमल नयन देखें, भगवान का श्रृंगार देखें, भगवान का मुकुट देखें, और क्या देख सकते हैं? और क्या आना चाहिए? भगवान का स्मरण आना चाहिए, केशव, भगवान के सुंदर घुंघरेले बाल हैं। फिर भगवान के पूरे छवि को 7 बार ऐसे घुमाया जाता है, भगवान के पूरे सुंदर सुंदर अंग को देखा जाता है। तो अटेंटिव डिवोशनल सर्विस होना चाहिए। जब भक्त भगवान को भोग धराते हैं, भक्त भगवान को भोग धराते, आपके घर पर कोई आता है भोजन करने के लिए, तो आप क्या करते हो? डाइनिंग टेबल बिछाते हो, प्लेट्स मैट्स रखते हो, प्लेट रखते हो, राइट साइड ग्लास रखते हो, एक साइड फोक, एक साइड चम्मच रखते हो, कितना अटेंटिवली। इसको कहते हैं फाइन डाइनिंग। तो भगवान के लिए फाइन डाइनिंग होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान के लिए फोक छुरी रखो, भगवान ऐसे खाएंगे, गोरे की बात ही, लेकिन भगवान को आसन दिलाना, भगवान के सामने भोग रखते हैं तो भगवान को संकेत करते हैं बैठने के लिए, भगवान को आचमन करते हैं, मुखवा ये करते हैं, तो अटेंटिव डिवोशनल, ये सब भक्ति का अंग है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक व्यक्ति को, कहीं भी मंदिर होता है, गांव के सभी लोग मिल के मंदिर में सेवा करें, क्योंकि जैसे यहाँ पर भी हमारे उत्तर प्रदेश से पंडित जी यहाँ पर रहते हैं, बहुत शिक्षा दे सकते हैं, भगवान की सेवा कैसे की जाए आपको शिक्षा कर, लेकिन कोई आए तो शोर मचावे गली गली, वो तो सही है, ले लो रे कोई राम के प्यारे, कोई राम का प्यारा तो हो, आओ आगे आओ, तब सीख पाओगे, गुरु के पास जाना होगा तब सीख पाओगे। तो कृष्ण भक्ति में भी ये सब भक्ति में आकर्षण है। सो फॉर डिवोटीज, हमारे जितने भक्तजन हैं, हमारे को भी जीवन में आगे बढ़ना है, ये सब भाव बढ़ाना है, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्रेमी भक्त हो गए, तभी हम लोग प्रेमी भक्त हो पाएंगे। तो बताया बाय अटेंटिव डिवोशन एंड मेडिटेशन एंड बाय चांटिंग द होली नेम। तो भगवान मन में आते कैसे भक्त का? बाय अटेंटिव डिवोशन, बाय मेडिटेशन एंड बाय चांटिंग द होली नेम। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब व्यक्ति बैठकर ध्यान करता है, भगवान को ध्यान करता है। कभी कभी हम लोग भी तो घर पर बैठते होते हैं ना, या शाम को बैठे हैं, केवल घर के टेरेस में बैठ के बाहर देख रहे हैं, ये मेडिटेशन भगवान का होना चाहिए। ध्यान में योगी होता है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतर आत्मना। गतेर अंतर, अंदर से ही कृष्ण भावना होता है, अंदर से ही। हमारे भक्त जाते हैं शहर में, बाजार में जाते हैं, सुंदर वस्त्र देखते हैं, सुंदर साड़ी देखते हैं, सुंदर कपड़ा देखते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान का सुंदर श्रृंगार बनाने के योग्य है ये। सुंदर गहने देखते हैं तो उसे भगवान के ऊपर ये श्रृंगार कितना, ये है योगी नाम अपि सर्वेशाम। हमारे भक्त सब ऐसे चलते फिरते योगी हैं, जो सब समय ये विचार कर रहे हैं कैसे एनीथिंग नाइस यू सी नाइस वेजिटेबल्स, यू सी नाइस फ्रूट्स। हमारे केशव प्रभु शॉपिंग करने जाते हैं, वो देखते हैं सुपरमार्केट में, देखते हैं चीज़ तो उसको याद आता है, मेरे को कॉल करते हैं, जरा प्रभु को कॉल करते हैं, प्रभु जी ये यहाँ पर इतना है, सुंदर सुंदर ब्रोकली दिखता है, ये दिखता है भगवान। तो योगी नाम अपि मत गतेन अंतर आत्मना। योगी मतलब ये नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में पंडित जी के गांव से क्या है, योगी जी है, चीफ मिनिस्टर। कोई बोलेगा योगी को कहीं पहाड़ में होना चाहिए, ध्यान करना होना चाहिए। रूपा जी कहते हैं सच्चा योगी चलता फिरता है, चलते फिरते कृष्ण का स्मरण भूलता नहीं है, भूलता नहीं है। तो डिवोटीज कैन बी वर्किंग, डिवोटीज कैन हैव फैमिली, आपका परिवार हो सकता है, आपका खेती बाड़ी हो सकता है, व्यापार हो सकता है, लेकिन सब समय स्मरण क्या है? मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये चलता फिरता योगी है।
ये चलता फिरता योगी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं जब इस प्रकार से और भगवान के नाम जप करते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं, ये ट्रांसलेशन है, पितामह भीष्म ये बोल रहे हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु अपीयर्स इन द माइंड ऑफ द डिवोटी बाय अटेंटिव डिवोशन एंड मेडिटेशन एंड बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. वो मेन फाइनल धुआई होगा, धौत आत्मा पुरुषा पाद मूलम न मुंचती, एंड तलक भगवान के कमल चरण छोड़ो नहीं। फिर कहते हैं पितामह भीष्म, May my Lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as the rising sun is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body. पितामह भीष्म भगवान से कह रहे कि हे भगवान, हे हम लोग के दुख पड़ता था, हे भगवान, हम लोग के जैसे मुसीबत आई गया है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका सुंदर स्वरूप देख रहा हूं, आपका चेहरा, आपके आंखें जो उगता हुआ सूर्य की तरह। जब हमारा शरीर से प्राण निकल रहा होता है, डिवोटी क्या एक्सपीरियंस करता है? बिकॉज ही इज एंटरिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, he is experiencing sunrise. संसारिक व्यक्ति मरता है, उसको क्या देखता है? अंधकार दिखाई देता है। मरता हुआ व्यक्ति ऐसे करता है। और भक्त जब मरता है तो भक्त के मुख पर मुस्कुराहट होता है। When there is light, सब डर चला जाता है ना, you become confident। और जब रात आता है तो हमको, जब आप कर्म का भोग करने के लिए यमलोक की यात्रा की ओर जाते हैं तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जब भगवान का धाम प्रवेश मिलता है तो सब कुछ उज्जवल तेजोमय हो जाता है। और बताया गया है भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान के मुख पर हसीतम। कृष्ण क्यों स्माइल करेंगे व्हेन द डिवोटी इज पासिंग अवे? Krishna is very happy. Krishna is very happy. The devotee is coming back. भगवान खुश है। हमारा माता पिता से पूछो, लड़कन जब लौट के घर आए, लड़कन घर से भाग जाए, घर छोड़ के लौट के आए तब माई बाप के चेहरा एकदम चटक हो जाए। पिटाई तो भगवान यहाँ संसार में कर ही रहे हैं। तो पहले माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को बोला, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से क्या कह रहे हैं कि कृष्ण तुम तब तक यहाँ पर टिके रहना जब तक मेरा प्राण नहीं निकले। केवल वो क्षण तक टिके रहना जब मेरा प्राण निकला। मैं ये पढ़ा, मुझे तुरंत रामायण में जटायु की कथा याद आ गई। जब राम को समाचार दिया कि रावण सीता को ले गए हैं और वो जो उनका एंकलेट्स वगैरह था वो दिया तो पहचान हुआ, तो फिर राम प्रसन्न हुए और जटायु को बोले कि वरदान मांगो, अगर तुम मांगो तो तुम्हारा पंखा जो है मैं वो रीग्रो कर दूं। लेकिन जटायु बोले नहीं। बोले सबसे बड़ा भाग्य है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो साक्षात गोविंद खड़े हैं, साक्षात राम खड़े हैं, इससे अच्छा मौका नहीं है प्राण त्यागने का। भगवान आप अच्छा कर दोगे, मुझे चले जाओगे, फिर मेरा मरना होगा, उस समय मालूम नहीं तुम आओगे कि नहीं आओगे। उस समय पुनः राम को वनवास थोड़ा ही होगा, अभी तो वन में राम है, सामने खड़े हैं। यही बात पितामह भीष्म कह रहे हैं, भगवान केवल आप उतने देर तक टिके रहना जब तक मेरा प्राण नहीं निकले, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है। जब प्राण निकल रहा है तब हमें कृष्ण का दर्शन मिलना चाहिए। तब ऐसे कभी कभी जब भक्त का प्राण निकलता है, भक्त का प्राण निकलता है, एक सांसारिक व्यक्ति का भी प्राण निकलता है। कभी कभी जब प्राण निकलता है लोग के आंख खुला रह जाए,
लेकिन आप भक्त और अभक्त के आंख जिस प्रकार से खुला है, आप उस आंख को देखेंगे, भक्त का वेलकमिंग लुक होता है और अभक्त का फियरफुल, डरा हुआ लुक होता है। हमारी डॉक्टर नहीं जानती है उनके जीवन में वो मुर्दे को देखती है हमेशा। तो ये होता है। तो पितामह भीष्म के भाव में हम लोग को हमेशा एवरी डे, हर सुबह मंगल आरती में आप खड़े होते हो या शाम को या भगवान को जिस समय भी सामने जाते हो, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके निकले। आज आपने भागवत में सुन लिया है, चलो एक और आपको प्रार्थना हो गया, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान पितामह भीष्म के जैसे आप सामने खड़े रहना। खाली ऐसे नहीं बोलना पितामह भीष्म के जैसे, कहीं भगवान खाली बांध के पै चाहिए आप छोड़ दी तभी गड़बड़ाई चाहिए। हम लोग बोले लटा माइंड में से आई तो पितामह भीष्म के रकम में कहीं हमें बांध के चाहिए आप नहीं पड़ा रहे। मतलब भगवान से प्रे करो कि पितामह भीष्म की तरह आप जैसे पितामह भीष्म भगवान आपके, और एक्चुअली में अगर बांध के शैया पे भी पड़ा रहो या जटायु की तरह पंख भी कट जाए, लाभ क्या है? दोनों भगवान की सेवा है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे सेवा में ही मेरा प्राण निकल जाए। इट्स नॉट एन ऑफेंस टू इमेजिन भगवान मैं आरती करता रहूं और मैं से गिरूं मर जाऊं, खाली मंदिर में आगे नहीं लगे। सीमा प्रभु बोले भगवान मैं आपके लिए भोग बनाते बनाते ऐसे खाली हंडी में नहीं गिरना, बगल में गिरना, नहीं तो भोग अर्पण बुरा खराब हो जाए। हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हरि नाम में हम लोग रूप्स मेगा में हरि नाम करते करते टेंट में ही गिरे मर जाए। भगवान भगवान हम आपके सेवा में प्राण त्याग दें, भगवान हम आपके सेवा में प्राण त्याग दें। हमको इसे भगवान से प्रार्थना करना होगा, बोलेंगे नहीं तो नहीं होगा। कृष्ण कैसे जानेंगे कि आप चाहते हो? आप कृष्ण, हम लोग बोलते हैं भगवान मैं मन में प्रार्थना करता हूँ। आप लोग कोशिश करना किसी दिन भगवान के सामने खड़ा रहना और भगवान से बोलना नहीं, केवल देखना आपके मन में से क्या निकलता है। आप देखेंगे हमारे मन में से सब अर्थ निकलेगा, हमारे मन में सब डिजायर आएगा धीरे धीरे। हमारा मन क्या बोलेगा भगवान के? भगवान हमें $1,000,000 दे दो, भगवान हम आपके इतना प्रसाद वितरण करवाएगा। अभी कोई नहीं बोले भगवान हमें स्मरण में आना। अभी तो हम लोग फिर भी अर्थ मांगता है, अर्थ मांगते हो उसमें अभी भी रिस्क संगे है, आग संगे है, वो आशीर्वाद में आग संगे है। तो भगवान से बोलो भगवान आप जो सोचते हो सही है वो मुझे प्रदान करो, लेकिन इतना जरूर करना पितामह भीष्म की तरह, जामिल की तरह, जटायु की तरह, ऐसे कई भक्त हैं भगवान जब वे प्राण त्याग रहे थे तो आप उनके समस्त थे, तो आप हमें लेने जरूर आना। प्रभुपाद जी बोले कि जो भी कोई हरिनाम संकीर्तन ये भक्ति चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लगा हुआ रहेगा, भक्ति विनोद ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु आएंगे उसको हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो हमको ये प्रार्थना है भगवान आप हाथ पकड़ के आना, लेके जाओ। जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब प्राण निकलेगा, जब स्वर्ग के मार्ग से जाओगे, कहीं स्वर्ग के द्वार पे उर्वशी खड़ी होगी, बोलेगी वेव कर रही होगी, हम लोग स्टेयरिंग घुमा देंगे स्वर्ग में हल जाएंगे। फिर भी तो भगवान गुरु के रक्षा में भगवान हाथ पकड़ के, चैतन्य महाप्रभु ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस दिया है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के इंश्योरेंस है, और प्रभुपाद जी ये इंश्योरेंस पॉलिसी के सेल्समैन है। सभी को प्रभुपाद जी साइन अप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले पूरा लाइफ इंश्योर करो। और ये टेम लाइफ नहीं है, ये अल्टीमेट मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे जीवन में फिर से आ जाए। तो माता जी हमारा भजन गाएंगी, ललिता माता जी, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। इधर आ जाओ, माइक इधर, माता जी इधर आ जाओ, उधर माइक पहुंची नहीं, इधर माता जी का चेयर ला दे, ब्रिंग द चेयर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की।
निताय गौ प्रेमानंदे। हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, आप अपने हृदय के पुकार से भगवान को अपने आप को समर्पित कीजिए। जो ये भजन गाया जाए, सरल हिंदी भजन है, आप इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए और वो भाव को अपने मन में जागृत कीजिए कि भगवान एक बार फिर से ये भजन जो है वास्तविकता में हम और आपका जो भगवत धाम में जब निवास था, जब हम भगवान के साथ में अलग अलग कार्य कर रहे थे, हम लोग को पुनः याद दिला रहा है कि भगवान हमारे जीवन में वो सब वापस आ जाए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो। मोहन के तुम माखन चुराते हो। तुम माखन चुरा जाओ हमारी बाल टोली में। फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली